हे बच्चों, पहला पसंद का हिंदी विषय फिर भी पढ़ना, लिखना और बोलना। तुम क्या सोचता है सभी छात्रों? हाँ या नहीं? हाँ जी, बहुत अच्छा। पाठ 3 बस की यात्रा। लेखक का नाम हरिशंकर परचाई। बस की यात्रा कहानी। लेखक परिचय। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 22 अगस्त 1924 को जन्म प्रसिद्ध व्याख्याकार हरिशंकर परचाई हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्याख्या को साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने व्याख्या को हल्के फुल्के मनोरंजन की परिधि से उबारकर इसके माध्यम से समाज को व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी भाषा शैली में एक खास तरह का अपनापन है जिससे पाठक को लेखक सामने बैठा महसूस होता है। इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार के अतिरिक्त अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 10 अगस्त 1995 को जबलपुर मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया। प्रसिद्ध रचनाएं हंसते हैं राते हैं, बोलाराम का जीव, कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, दटकी कोंच, ज्वाला और जल उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के भाव पीछे, प्रसन्त के प्रेमचंद के फट जूते, सदाचार की दाबिज, तुलसीदास संत किसैन, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, लेखक संग्रह आदि। लेखक परिचय completed. In the lesson introduction, introduced text famous satire is an excellent satire story written by author Harisankar Parsai. The writer and his 4 other friends decided to travel in a very elderly looking bus. Stakeholder of the company was also traveling with the same bus, risking his life. As soon as the bus started, the whole bus started to make such a loud sound as if the entire bus had become an engine. The glass windows, seats, etc. were in a very shabby state. Passengers had to avoid all this. After walking a short distance, the bus came to a sudden halt as the petrol hole in the tank. After a temporary solution to the problem, when the bus moved forward, the bus tire broken after walking a little distance, and the bus fell narrowly. After this, the bus started running again after putting a second own tire. But the writer and his colleagues have hope of reaching their destination in time. They all thought that whatever happens now, whatever happens will be with the bus. There everyone started laughing jokingly without stress. That's all in the story. बस सचमुच चल बड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होंगी। उसे ट्रेनिंग का मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बांटी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बांटी को छोड़ कर आगे निकल गई है, कभी लगता ही सीट को छोड़कर बांटी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझा में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। English explanation.
The bus really took off and we felt that it must have been young during the non-cooperation and civil disobedience movements of Gandhiji. He had received training. Every part was uncooperative with the other. The entire bus was undergoing a civil disobedience movement. Seat was running non-cooperation with the body. Sometimes the seat seems to have overtaken the body. Sometimes the body is being pushed forward, leaving the seat. All discrimination disappeared after walking 8 or 10 miles. It was not understood that we are sitting on the seat or the seat is sitting on us. एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली खोलकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। जैसा मांग बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। नेक्स्ट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। Suddenly the bus stopped. It was found that there was a hole in the petrol tank. The driver took out the petrol in the bucket and placed it next to it and put a hose and sent it to the engine. Now I was hoping that after a while the company's stakeholders would take the engine out and put it in the lap and feed it petrol from the tube, like a mother puts a bottle of milk in the baby's mouth. The speed of the bus was now 15 to 20 miles. I did not trust any part of him. Brakes may fail, steering may break. The views of nature were very breathtaking. Mediat on both sides. हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएंगी। वक्त निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस खोता लगा जाएंगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरफ तरफ की तरकीबें की पर वक्त चली नहीं। साविनीय अवन्य आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। There were green trees on which birds were sitting. I thought every tree was my enemy. Whatever trees comes, afraid that the bus will collide with it. If he had gone out, he would have waited for another tree. Had the lake been seen, I would have thought it would just die. Suddenly the bus stopped. The driver made all kinds of tricks, but he did not walk. The civil disobedience movement was started, with the company's shareholders saying, "It's just first class D. It's a coincidence." सेंट सांतिनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा टक्कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रही हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस व्यापार में हमें इसकी अंत्योष्टिय करनी पड़ेगी। हिस्सेदार
साहब ने इंजन गोला और कुछ सुधार बस आगे चली उसकी चाल और कम हो गई थी English explanation She looked just pathetic under the shade of trees in the faint moonlight. Looks like some old lady is tired. We were feeling guilty that we are coming down on the poor thing. If it dies, then in this Vyaban we will have to conduct it. The shareholder opened the engine and rectified something. The bus went ahead. His gait was reduced further. That's all. सभी छात्रों कुछ शब्द अर्थ दीजिए विश्वसनीय विश्वास करने योग्य रिलिएबल रग गरीब पुअर श्रद्धा आदर भाव रेस्पेक्ट व्योवृत्त बहुत बूढ़ी वेरी ओल्ड दयनीय दया करने योग्य पैथेटिक कूच करना आगे बढ़ना गेटिंग अहेड निमित्त कारण फॉर द पर्पस असहयोग साथ न देना नॉन कोऑपरेशन सवनीय प्रार्थना सहित काइंडली लुभावने मन भावन अट्रैक्टिव तरकीबें योजनाएं ट्रिक्स इंतफाक संयोग कोइंसिडेंस ब्याबान सुनसान वेस्ट प्रांत मृत्यु द डेथ टटोलना ढूंढना ग्रुप श्रद्धाभाव आदर से रेवरेंस साहस हिम्मत करेज अमित आशा होप बेदापी व्याकुल डिस्ट्रैक्ट तनाव मानसिक दबाव टेंशन इत्मीनान निश्चित लेशरली उत्सर्ग त्याग एमिशन दैट्स ऑल सब छात्रों धन्यवाद।